Standard 10 Geography. Lesson number 1 Field Visit. We have already completed the first part of this lesson. Now let's continue. This is the second part of the same lesson. सो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था उन लोगों ने उजनी डैम का कुछ पिक्चर्स कुछ इमेजेस क्लिक करके वापस अपने जर्नी कंटिन्यू किया. नाउ पूजा, मैडम दिस सीम्स टू बी अ प्लेन एरिया. टीचर, yes, we are going through a plain region. This is a part of the Deccan Plateau itself. As we go westwards, we will notice major changes in the relief and vegetation. After few hours of journey, they left the main road near Hadapsar and turned towards Sinagat. There were many big and small hotels at the foothills. They stopped at an open space at the roadside and had their lunch. They relaxed for a while. तो वहाँ से निकलने के बाद they passed through a plain region and teacher explained that that plain region is a part of Deccan Plateau. Deccan Plateau महाराष्ट्र का बहुत ही बड़ा एक रीजन है डेक्कन प्लेटो. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट. और वहाँ से फिर वेस्टवर्ड जाते जाते बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस देखा उन लोगों ने रिलीफ और वेजिटेशन में. आई टोल्ड यू रिलीफ और वेजिटेशन व्हाट इट इज़. और उसके बाद किसके तरफ आगे बढ़े? सिनागढ़ के. और ये रास्ते में सिनागढ़ एक हिल फोर्ट है, पहाड़ के ऊपर बना हुआ है. तो ये उधर का हिल के नीचे का रीजन को फुट हिल्स कहते हैं. फुट हिल्स में बहुत सारे स्मॉल होटल्स देखे उन लोगों ने और दे हैड देयर लंच. नाउ Nazma, I also noticed that when we left Naldurg, trees like Jujubi, that is boar ka jhad, and Babul, etc. were visible. But here different trees are seen. तो ये एरिया बदलते बदलते जो झाड़ दिखाई देते वो भी चेंज हो जाता है. नालदुर्ग में जो ट्रीज दिखे वो यहाँ पर अभी सिनागढ़ की तरफ जाते जाते वो नहीं दिखाई दे रहे. यहाँ पर कुछ और काइंड ऑफ दूसरे वैरायटी के झाड़ दिखाई दे रहे हैं. Teacher, good. While crossing Naldurg, we saw semi-arid thorny type of vegetation. Semi-arid. Arid region means रूखा सूखा ज़मीन. सेमी एरिड मीन्स वो ऑलमोस्ट रूखा सूखा. तो वहाँ पर हरे भरे झाड़ नहीं ज़्यादा दिखाई देते. वैसे रीजन में काटेरी झाड़, थोड़ी ट्रीज जिसमें कांटे ज़्यादा होते हैं, वैसा ट्रीज दिखाई देते. Change in type of vegetation is an indicator of change in the amount of rainfall in that area. अगर कोई एरिया में अगर एक एरिया में कितना रेनफॉल मिलता है, कितने पानी का अवेलेबिलिटी है, बारिश ज़्यादा भरपूर आता है कि नहीं, देखने के लिए यहाँ का कोई भी एरिया हो वो एरिया का प्लांट्स देखो. किस काइंड ऑफ प्लांट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलता है उस पर डिपेंड रहेगा. यानी वो बताएंगे, दैट इज़ एन इंडिकेटर. वो हमें बताएंगे कि वो एरिया में कितना बारिश आता है. अगर समझो एवरग्रीन फॉरेस्ट है पूरे हरे भरे, देन वी कैन डिसाइड दैट दैट एरिया इज सच एन एरिया वेयर lots and lots of rainfall is available. Okay, so we see that Anjan, another name is ironwood, banyan and peepal trees are more in number here. All right, now we have reached the foothills of Sinagat. Now we will climb to the top and you will see the offshoots of Western Ghats. What do you mean by offshoots? I told you already, mountain के जो अलग अलग लेवल के ब्रांचेस होते हैं उसे offshoots कहते हैं. You will only carry your iCard, notebook, pen, binoculars, camera, cap, map and water bottle. Keep your luggage and other items in the bus itself. बिकॉज ये चढ़ान है, बराबर माउंटेन चढ़ना पड़ता है. ज़्यादा लगेज ले जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि थोड़ा देर विजिट करने के बाद दे हैव टू रिटर्न टू द बस. तो बाकी जो मेन ज़रूरत है चीज़ें वो सिर्फ लेना है, बाकी लगेजेस को गाड़ी में छोड़ना है. When they started climbing the Sinagat fort, it was quite sunny. Sunny means क्या होता है? बहुत ही धूप. Okay, at first, starting में जब climbing करते करते शुरुआत में बहुत ही धूप था. Then it became cloudy. कुछ देर के बाद बादल छाने लगे. Later it also started drizzling, हल्का सा बारिश. And students enjoyed eating steamed groundnuts, buttermilk and curd on the way. Steam किया हुआ groundnut, it's very tasty to eat. Buttermilk and curd they enjoyed. They clicked photographs of various physical features.
the vegetation around, birds, the aerial view of Pune city and the various structure of the fort. तो इन लोगों ने काफ़ी फोटोग्राफ्स भी खींचे, अलग अलग फिजिकल फीचर्स यानी पहाड़, वेजिटेशन, जो लो लाइंग एरिया, ये सब कुछ किए, और वेजिटेशन, बर्ड्स के फोटोज बनाए, एरियल व्यू ऑफ पुणे सिटी यानी इतने टॉप में खड़े रहकर जो वहाँ से दिखने वाला पुणे सिटी का व्यू वो भी खींचे. Afterwards, teachers asked them to gather at one place. Why? They wanted to share some information. Teacher, we have now reached the fort of Sinagat. How will you collect information about it? अभी तो सिनागढ़ पहुंचे फोर्ट में, but who will tell you about the detail about the Sinagat? How will you collect the information? Neha had the answer. Neha told, Madam, we saw a board at the entrance which gave us information about the Sinagat fort. We also have clicked its picture. हाँ मैम, एंट्रेंस में, फोर्ट के एंट्रेंस में वी सॉ अ बिग बोर्ड, एक बड़ा सा बोर्ड था और उसमें पूरे डिटेल लिखे हुए थे, एंड ऑलरेडी वी हैव टेकन द पिक्चर ऑफ दैट बोर्ड. गुड नेहा. नाउ हु विल टेल द डिफरेंसेस इन द रिलीफ फीचर्स नाउ? अभी रिलीफ यहाँ पे जो आने पर ये जहाँ यहाँ का जो स्ट्रक्चर ऑफ लैंड का या टोपोग्राफी का डिटेल कैरेक्टरिस्टिक कौन बताएगा? Kasim. Madam, we can see that now the undulating plains have turned into rugged photography with the, sorry, topography with the hills. पहले undulating थे, थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, plainy region था, but now it became rugged topography. What do you mean by rugged topography? बहुत ही harsh, मतलब इतने fast changes, पहाड़ी, नुकीले जगह, पूरे हिल से भरे हुए, कुछ जगह बहुत ही स्टीप, एकदम डायरेक्ट ढलान, तो वैसा एकदम रग्ड टोपोग्राफी यहाँ पर है और भरे पड़े हिल से. दिस इज अ हाई हिल, वी आर एट अ हायर ऑल्टीट्यूड एंड हेंस कैन इवन एक्सपीरियंस क्लाउड्स. हम कहाँ पर है? एक हायर ऑल्टीट्यूड में, यानी काफ़ी ऊंचाई पर है, नॉर्मल लेवल से, समुद्र तल से काफ़ी ऑल्टीट्यूड पे है हम, इसीलिए हमें बीच बीच में क्या दिखाई दे रहा है? क्लाउड्स भी दिखाई दे रहा है, यानी स्नोवी लग रहा है. Teacher, very good Kasim. You can notice many physical features like rock pinnacles. Rock pinnacles means पत्थरों के एकदम नुकीले ऊपर टॉपमोस्ट पार्ट को कहते हैं रॉक पिनेकल्स. Valleys and hills and layers formed from volcanic eruption. Valley दिखाई देगा, एकदम फुट हिल में जो लंबे चौड़े हरे भरे भरे हुए एरिया, हरियाली वगैरह भरे हुए एरिया, और लेयर्स फॉर्म्ड फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन. वॉल्केनो कभी तो फुटकर जो लावा वगैरह मैग्मा वगैरह जमा हो गया हुआ लेयर में बने हुए एरिया भी दिखाई देगा. हैव यू रिकॉग्नाइज्ड रॉक फाउंड हियर? यू माइट हैव सीन सम डेब्रिस. डेब्रिस मतलब टूटे फूटे जो पुराने चीज़ें टूट फूट कर एकदम बेहाल कंडीशन में पड़ा हुआ चीज़ को डेब्रिस कहते हैं. डेब्रिस ऑफ लैंडस्लाइड्स एट प्लेसेस वाइल क्लाइंबिंग. हम यहाँ पे चढ़ते आते वक्त डेब्रिस देखे हमने अपने लैंडस्लाइड का. नाउ टेल मी अबाउट द एग्रीकल्चर पैटर्न अराउंड. अभी बताओ यहाँ पे एग्रीकल्चर किस तरह है. तो उससे पहले देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ हमारे टेक्स्ट बुक में, नारमादी वाटरफॉल नालदुर्ग के, ठीक है, जहाँ से लोग निकले थे वो एरिया का. उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक मड और वुड का हाउस, ये भी हम पढ़ के आए, यानी ढाबियाची घरे. यहाँ पर आप देख सकते हो रोड्स एंड शॉप्स. लोग जो रास्ते से गए उस साइड के रोड और शॉप्स के बारे में दिखाया हुआ है. यहाँ पर है वेजिटेशन जो सेमी एरिड रीजन में है, क्योंकि इधर जो घास आपको दिखाई दे रहा है वो पूरे एकदम रूखे सूखे हुए हैं, और यहाँ पर इस तरह के प्लांट्स ज़्यादातर दिखाई देते हैं. यहाँ पल्सेस का कल्टीवेशन दिया हुआ, ये भी ज़्यादा पानी नहीं जो एरिया वहाँ पर होता है. पल्सेस यानी जैसे तूर, मूंग, उड़द दाल, ये सब जो चीज़ें होती है पल्सेस में आता है. ये हुआ शुगर केन के प्लांट्स, ये तो छोटे छोटे प्लांट्स है, काफ़ी ऊंचा हो जाता है. ये उजनी डैम का रिसर्वोयर है. उन लोगों के जितने भी ट्रैवलिंग हुआ उसके बीच में अलग अलग काइंड ऑफ ट्रीज अलग अलग जगह से देखने को मिला. यहाँ पर जो ट्री है देखो उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, यहाँ पे पत्ते बहुत ही गैप में है, मतलब इतना भरे पड़े नहीं है. यहाँ पर देखो इस ट्री का कैसा शेप है. अब यहाँ पर पहुँचा, इन लोगों ने पहुँचा है जो एरिया है सिनागढ़ फोर्ट. देखो स्टार्टिंग में एक बोर्ड लगा कर रखे हुए हैं
जिसके ज़रिए यहाँ का नॉलेज मिल जाता है। हमने अभी लेसन में जिक्र किया ये वर्ड को, लेयर्स ऑफ रॉक। अलग अलग लेयर में पत्थर या एरिया बने हुए हैं। तो चलो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं हम। तो मैडम का सवाल था कि कौन से टाइप ऑफ रॉक आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो राहुल ने आंसर दिया, मैडम दिस इज बसाल्ट एन इग्नियस टाइप ऑफ रॉक। हमने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स का, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, है ना। तो ये यहाँ पर, और हमारे महाराष्ट्र में तो ऑलमोस्ट बसाल्ट रॉक ही हमें देखने को मिलता है। इग्नियस टाइप ऑफ एक रॉक है बसाल्ट। Mary, we saw mainly pulses being cultivated at the place where we live. Between Solapur to Pune, we saw sugarcane, and now we see mainly paddy field. तो पहले हम जहाँ से निकले वहाँ पर क्या है, pulses. Then we saw sugarcane. Now we can see paddy field. तो different cultivations हो रहा है. It shows that जो climate है, जो water availability, ये सब ऐसे ही जगह बदलते बदलते चेंज होता है। पैडी फील्ड का मतलब होता है चावल का खेती। टीचर, करेक्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल हियर। सो पैडी फील्ड शोज दैट, चावल का खेती हमें ये दिखाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल मिलता है। कैन यू रिकॉल सीइंग अ सिमिलर फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बिफोर? What difference do you see between both of them? Wahida, Madam, we can compare this with the Naldur fort itself, but it is not situated on a hill like Sinagar. We do not have to climb up a slope to see it. तो जवाब था ये फोर्ट इट्स अ हिल फोर्ट, पहाड़ के बहुत ऊपर चोटी पे लगा हुआ है। और हमने दूसरा जो देखा था नालदुर्ग में, वो फोर्ट नॉर्मल प्लेनी रीजन में है, यानी उसको उधर पहुंचने के लिए पहाड़ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो टीचर वेरी गुड, नाउ वी हैव रीच द टॉप ऑफ द फोर्ट। अभी हम फोर्ट के एकदम ऊपर पहुंचे। दिस इज़ अ हिल फोर्ट एज इट हैज़ बीन बिल्ट ऑन अ हिल। ये पहाड़ पे बनाया हुआ है तो हिल फोर्ट हुआ। ओके, अगर सागर की साइड में बनाया होता तो सी फोर्ट हो जाते थे। दिस वॉज बिल्ट विद द व्यू ऑफ सिक्योरिटी। देश का सुरक्षा के लिए ये बनाया गया, एंड टू कीप एन आई ऑन द सराउंडिंग्स। यहाँ से पूरे सिटी या पूरे एरिया दिखाई देता है। सो जो अथॉरिटी है, जो राजा के जो अथॉरिटीज़ होते हैं, उन लोग यहाँ पर, या सैनिक लोग यहाँ पर रहकर पूरे एरिया पर नज़र रखते हैं। नालदुर्ग इज ए फोर्ट ऑन लैंड। ऑल सच फोर्ट्स आर द हेरिटेज ऑफ आवर स्टेट। ये सभी किस्म के फोर्ट हमारे स्टेट के, महाराष्ट्र के हेरिटेज है, यानी हमारे पूर्वजों से हमें मिले हुए क्या बोलते हैं, तोहफा है या गिफ्ट है, या फिर हमारे देश का पूंजी है, हेरिटेज है। Come here and look down. The water body that you see in front of is the reservoir of Khadakwasla. और इधर आकर देखो, जो वाटर बॉडी यानी बहुत बड़ा पानी का जो जगह है, वो जो दिख रहा है वो खड़कवसला डैम का रिसर्वायर है। खड़कवसला डैम which serves water to the areas in and around पुणे। पुणे के सभी आसपास के एरिया में ये डैम के ज़रिए पानी मिलता है। Now we'll go to Kalyan Darwaja, that is Kalyan Gate. Come here and see this structure. This is called Devtek. Devtek means a sacred tank, पवित्र टैंक। वाटर कमिंग फ्रॉम द नेचुरल स्प्रिंग। नेचुरल स्प्रिंग क्या होता है, ज़मीन के अंदर से पानी निकल के आता है, वेरी प्योर वाटर। नेचुरल स्प्रिंग गेट्स कलेक्टेड या गेट्स स्टोर्ड हियर, यहाँ पे जमा होता है ये सेक्रेट टैंक में, देवटेक। Even today it serves water all the year round to the people who stay at the fort above. अभी भी लोग ये फोर्ट में रहते हैं, फोर्ट को संभालने वगैरह, तो उनके लिए ये पानी इसी देवटेक में से मिलता है ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल भर। स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर, ओ माय गॉड, हाउ कैन वाटर बी अवेलेबल कंटिन्यूसली एट दिस हाइट सिंस सेंचुरीज? सदियों से यहाँ पर इतने ऊंचाई पे पानी कंटिन्यूसली कैसे मिल पाते हैं? यहाँ पर पैडी फील्ड दिया हुआ है। पैडी फील्ड क्या होता है, चावल का खेती। ये अभी जो हमने बात किया हुआ देवटेक, ओके, पानी ऐसा जमा है नीचे। Now let's continue. The teachers took them to a stall which served pitla bhakri. Pitla bhakri एक महाराष्ट्रन डिश है।
Students observed that there were many similar stalls. Stall means हाँ छोटे छोटे दुकानें होती है. Tourists were being served different food items there. बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको अलग अलग खाना भी यहाँ पर मिल रहा है. Tourists were being served. After spending little time at Sinagat Fort, students came down the foothills and boarded the bus. Boarded the bus means climbed the bus. Yeah, sitting in the bus. The bus started towards Pune city, where they had an overnight halt. Halt means रुकना. रात भर पुणे सिटी में रुके. They had evening snacks and tea and got ready to roam in the market. Evening में snacks tea होने के बाद market में घूमने के लिए निकले. Teacher, we will be visiting places in Pune like शनिवार वाड़ा. शनिवार वाड़ा बहुत ही फेमस जगह है पुणे का. And famous market places like तुलसी बाग and Maharashtra Mahatma Phule Mandai. Mandai means market. There are wholesale and retail markets here. You can do shopping here. Make sure you write down all your observations. Shopping वगैरह भी कर सकता है as a part of this visit, but whatever you do, whatever you see, make a note of your observations. After the city tour, they had dinner and returned to the place of their night halt. Then day second, 7 o'clock. After breakfast, they proceeded to Alibag. Breakfast के बाद अलीबाग के लिए निकले. आगे चले. Teacher, now we are on the Mumbai-Pune expressway. Can you see the change in the relief again? We will stop at Rajmachi Point near Lonavala. जैसा फोर्ट बनाया हुआ है शिवाजी महाराज ने बहुत सारे, इसी तरह माची भी बनाया है. माची भी ऑलमोस्ट ऐसे थोड़ा बहुत फोर्ट जैसा नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. माची हमने बहुत सारे माची के बारे में 4th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री में जब हम शिवाजी महाराज का जो स्टोरी पढ़े थे तभी देखे हैं. तुषार, yes madam, even though we are driving on a plain road, we can see hilly regions all round. The frequency of houses is becoming less. हाँ, ये एरिया प्लेन है जहाँ से हम जा रहे हैं, फिर भी दोनों तरफ देखोगे तो बहुत सारे पहाड़ दिखाई दे रहा है. एंड हाउसेस का फ्रीक्वेंसी भी कम होते जा रहे हैं, यहाँ पे हाउसेस की भीड़ भी कम हो रहा है. After Lonavala, they stopped at Rajmachi Point and the teacher gave information about various relief features. Teacher, these are slopes of Western Ghats. ये slopes वगैरह consider करना, all that are relief features. Western Ghat का slope है, we call these hilly areas Sahyadri. Sahyadri is the another name of Western Ghat. From here, you can observe the difference in the slopes, the gentle slope to the east and the steep slope to the west. What is gentle slope and steep slope? अगर चढ़ान जो उतार होता है चढ़ान का या हिल का जो उतार होता है, स्लोली अगर उतर पाते हैं, एकदम स्लोप जेंटल है. जेंटल मतलब डायरेक्ट खाई नहीं है, मतलब डायरेक्ट ऐसा नीचे नहीं है. स्लोली हम उतर भी सकते हैं, चढ़ भी सकते हैं, ऐसा स्लोप है तो उसे जेंटल स्लोप कहते हैं. स्टीप स्लोप मतलब बड़ी मुश्किल है हमें डायरेक्ट ऊपर चढ़ना, एकदम डायरेक्ट ढलान से डायरेक्ट नीचे आ जाता है वो. Towards the west you can see many cliffs and waterfalls about which you have learned in class 9. क्लिफ क्या होता है? ऐसे नुकीला जगह, नॉर्मली ये सागर के किनारे में वगैरह ज़्यादातर होता है, पत्थरों के वगैरह या बड़े पहाड़ जैसे जो रॉक का एकदम नुकीला जगह आगे इसे झुका हुआ, यानी डायरेक्ट उसके नीचे पूरे बड़े खाई है, बहुत डीप एरिया होता है. दिस रीजन इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ रिवर उल्लास, अ मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर. उल्लास नदी तो हमारे यहाँ से भी बहती है, जो जिसको हम यहाँ पे आपती नदी नाम से जानते हैं. ये आगे आगे जाते जाते वांगणी रीजन में जाते जाते इसका नाम उल्लास हो जाता है. तो इसी रीजन से उल्लास नदी शुरू होता है. The students took photographs of these features. It started raining again and their journey resumed. What do you mean by resumed? Started again. Namdev, looking at the map, Madam, we are crossing the Ghat section and now we are going to Khopoli. It was a question. Okay, मैम शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि घाट सेक्शन खत्म हो गया, अभी खोपोली की तरफ हम जा रहे हैं. करेक्ट नामदेव. दिस इज नोन एज द भोर और खंडाला घाट इन द वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट के दो, एक छोटा सा दूसरा घाट है भोर घाट या फिर खंडाला घाट. वी विल नाउ एंटर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. यानी अभी हम कोस्टल रीजन में समुद्री एरिया में जाने जा रहे हैं. ऑब्जर्व द ट्रीज, सोइल, हाउसेस दैट यू सी. Madam, we can see dense forest comprising of thick vegetation in the Ghats.
We can see trees with broad leaves. We have seen such trees in the Sinagat region also. तो यहाँ पर थिक वेजिटेशन, ज़्यादा घना झाड़ दिखाई दे रहा है, और ब्रॉड लीफ वाले यानी बड़े चौड़ाई ज़्यादा वाला पत्ते वाले झाड़ दिखाई दे रहा है. The same trees we had seen in Sinagar region also. These are teak trees. This region is a region of deciduous trees. There are many vanarais and devrais, woodlands and sacred groves. तो ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा झाड़ है, टीक का झाड़ है, और ये एक डेसिडियस ट्री है, यानी साल के कोई एक टाइम पे पत्ते गिराते हैं. और यहाँ पर कुछ वनराई भी होते हैं, देवराई भी होते हैं. वनराई यानी वुडलैंड, यानी उधर के लोग उस जंगल को बुलाते हैं वनराई, और देवराई मतलब कुछ भगवान के नाम से बढ़ाया हुआ फॉरेस्ट है. तो उस फॉरेस्ट में एनिमल्स प्लांट्स वगैरह बहुत ही सेफ रहता है, क्योंकि वो फॉरेस्ट किसके लिए डेडिकेटेड है, कोई पर्टिकुलर गॉड या डेटी के लिए डेडिकेटेड होता है. तो इसको कोई हार्म नहीं पहुंचा देते. तो अभी हम देखते हैं वनराई का एक इमेज दिया हुआ है, और टीक ट्री का भी इमेज दिया हुआ है. लेट अस सी दैट, एंड देन वी विल आफ्टर दैट वी विल स्टॉप द वीडियो एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. यहाँ पर देखो राजमाची, माची इसको कहते हैं, राजमाची का कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है. यहाँ पर देवराई दिया हुआ है. देखो यहाँ पे कोई मंदिर जैसा कुछ बनाया है, ऊपर दिखाई दे रहे हो. एक वनराई का इमेज दिया है. ये टीक का झाड़ है. एक्चुअली टीक का झाड़ का जो स्टेम्स होते हैं, जो ट्रंक होते हैं, बहुत ही मजबूत होता है. फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म तक टिकने वाले फर्नीचर बनाने के लिए वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं. तो चलो स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप दिस वीडियो हियर. ओके, वी विल कम बैक अगेन सून with the remaining part of the lesson. Bye bye.